Hello dear students, this is S.K. Dive and I am your teacher of English literature and language. As I promised you that we will continue with our course, and hopefully in a pick of mine I suggested you the book to purchase, and you may have known that there are actually the three sections that you will have to study, and particularly in intermediate final year, that's the 12th standard, we have to learn only literature. Means there is no language, no grammar that you will have to study. Still, whenever we have time, I would like to continue with grammar that I started previously, and we'll let you see how the grammar works, because somewhere grammar is a fundamental, and we need as a support in our class to be comfortable with the theme, to be comfortable with the things that we have to learn. And here I think I told in my previous class that we will go with prose and poetry in detail, because there will be some passages and stanzas from these portions for you to explain them, and the next part that will be supplementary, especially related to stories, that won't contain any element that will be related to explanation. So actually जो हमारा स्टडी का जो पोर्शन है जिसमें हमें डिटेल स्टडी करना है, मीन्स जिससे हमें एक्सप्लेनेशन भी लेने हैं, जिससे हमें क्वेश्चन आंसर्स भी लेने हैं, शॉर्ट भी क्वेश्चंस देखने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी देखने हैं, वोकैब को भी तैयार करना है, एंड समवेयर फिलिंग द ब्लैंक्स जैसे ऑप्शंस को भी कंप्लीट करना है. सो दैट इज़ एक्चुअली द पोर्शंस ऑफ पोएट्री एंड प्रोज, एंड टुडे वी हैव डिसाइडेड टू बी कंटिन्यू विद प्रोज. तो प्रोज के लेसन को हम लोग शुरू करेंगे, एंड आई थिंक, एंड एग्जैक्टली नॉट ओनली आई थिंक बट आई होप you would have learned the lessons that are there, and especially the vocabs. You know, the word power is our strength. If we don't have the word power, it will be really difficult for us to understand, and the most difficult portion in my word is to explain the thoughts that you understand. You know, कभी कभी होता है कि हमें समझना आसान होता है, बट जिस बात को हम समझ लिए हैं उसे किसी को समझाना, या उसी बात को सेम वर्ड्स में न करके डिफरेंट वर्ड्स में, मीनिंग शुड बी द सेम बट वर्ड शुड बी डिफरेंट करके एक्सप्रेस करना इज समथिंग डिफिकल्ट, इज समथिंग दैट नीड्स योर क्रिएटिविटी, एंड आई एम श्योर that cannot be done without the proper knowledge of grammar, and definitely the strength of the vocab is always as a backbone for us. तो आई थिंक कि जो आपके बुक्स में vocab दिए गए हैं उनको आप लर्न करते रहिए, और जल्द ही हम लोग ऑफलाइन भी मिलने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑलमोस्ट ऐसे इंडिकेशंस आ चुके हैं, ऐसे संकेत आ चुके हैं कि जल्द ही क्लासेस ऑफलाइन भी शुरू की जाएंगी. तो कॉलेजेस में आप आएंगे, और उसके साथ एक अलग इंटरेक्शन होता है, कि अलग वर्क होता है. जब हम फेशियल इंटरेक्शन में होते हैं तो कुछ अलग भी क्रिएटिविटी होती है, वर्ड्स होते हैं जिसको लेकर हम वर्क करते हैं. बट इवन दो बिफोर वी स्टार्ट दैट वी हैव टू बी कंटिन्यू विद आवर लेसन्स एंड लर्निंग, बिकॉज टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, यू नो, क्योंकि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है. सो इट्स नॉट गुड थिंग टू बी वेटिंग फॉर अ लॉन्ग. डेफिनेटली वी हैव वेटेड, बट अब ज़रूरत है कि हमें अपने लेसन के साथ चलना है. एक्चुअली जिस लेसन को आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा पैट्रियोटिक टच लिया हुआ है. दैट इज़ द लास्ट लेसन. Exactly. The last lesson, and this last lesson was a work of
story writer and novelist Alphonse Daudet. Alphonse Daudet. Exactly the lesson that we are going to learn is somehow related to education and the medium of education, especially the language that we use to educate or make our students to learn. That is especially the point of this one. So this point can be discussed here. Education and language of education. किस लैंग्वेज में ये एजुकेशन हमें मिलनी चाहिए, इस बात पर स्पेशली अल्फोंसे डॉटेट ने डिस्कस किया है. द रीज़न इज मदर टंग. अगर किसी की भी मदर टंग में या फिर जो उसके देश की भाषा है उसमें अगर हम किसी को भी समझाते हैं तो होपफुली वो उसे और भी अच्छी तरह से समझता है. अगर हम इंग्लिश को केवल इंग्लिश में समझाएं आपको, या इंग्लिश को हम फ्रेंच में समझाने की कोशिश करें, या इंग्लिश को हम जर्मन में समझाने की कोशिश करें, नो डाउट इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम, क्योंकि दीज लैंग्वेज आर नॉट योर मदर टंग. सो कोई भी एजुकेशन अगर मदर टंग में दिया जाना है तो दैट्स मच बेटर. बट व्हाट इज द इंसिडेंट दैट इज रिलेटेड टू दिस लास्ट लेसन ऑफ अल्फोंसे डॉटेट was actually the Franco-Prussian War. Franco-Prussian War. We all are quite familiar with the very fact कि ओल्ड डेज में वार बहुत हुआ करते थे और अक्सर जो विक्टोरियस कंट्री होती थी या जो विक्टोरियस आर्मी होती थी वो डिफीटेड आर्मी को या डिफीटेड कंट्री को अलग अलग तरह से टॉर्चर करते थे. और सबसे बड़ा टॉर्चर तो ये होता है जब मीडियम ऑफ एजुकेशन को बदल दिया जाए. थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जैसे हमारे यहाँ जो इंग्लिश भाषा आई, राइट नाउ आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश, तो मुझे तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, बट यू नो द कल्चर दैट हैव चेंज्ड इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज. आज हमारी सोच, हमारे ख्यालात, हमारे ड्रेसिंग्स, हमारी ऑलमोस्ट लाइफ स्टाइल, दैट्स वेरी मच सिमिलर टू द इंग्लिश कल्चर. एंड द रीज़न इज दिस मीडियम ऑफ लर्निंग. क्योंकि आज हर कोई इंग्लिश को एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मानता है, आई मस्ट से, और स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन मान के रखा हुआ है. और उनका, कुछ लोगों का मानना यह है कि स्टैंडर्ड एजुकेशन कैन बी ओनली डिलीवर्ड थ्रू इंग्लिश मीडियम. तो उनके लिए तो इंग्लिश मीडियम होना एक किसी आशीर्वाद या वरदान से कम नहीं है. ऐसे ख्यालात से शुरू में हम डरते हैं. जब हमारे यहाँ शुरू में इंग्लिश एजुकेशन शुरू हुई तो वी आल्सो प्रोटेस्टेड, क्योंकि हमें लगा था कि इस विदेशी भाषा के साथ एक्चुअली हम कैसे अपनी एजुकेशन को या अपने आप को कंफर्टेबल फील कराएंगे. बट यू नो, मेरा मानना है the language we speak, the language we write in, the language we dream in, definitely they become our own. यहाँ थोड़ा सा मैं कमला दास से ताल्लुक़ रखता हूँ, उनके विचारों से, ख्यालातों से मेरा थोड़ा वास्ता हो जाता है, क्योंकि लैंग्वेज होती ही है टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट, ड्रीम्स, विजन्स.
And it doesn't matter whether we express it in Hindi or we express it in Urdu or we express in Arabic or we express it in any European or foreign language. Doesn't matter, because they all meant to express our ideas and thoughts. तो language कोई भी हो, but one thing that we cannot deny actually is we cannot skip the very influence of the language. कभी आप संस्कृत को पढ़ के देखिए, कभी आप हिंदी को पढ़ के देखिए, आपके अंदर एक सीरियसनेस, एक ग्रेविटी आती है, बिकॉज द लैंग्वेज इज क्वाइट ग्रेव वन. अगर आप उर्दू को पढ़ते हैं, उनके अल्फाज, उनके ख्यालात आपको रूमानी दुनिया में लेकर जाते हैं, सूफियाना अंदाज आपका हो जाता है. अगर आप इंग्लिश को पढ़ते हैं तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपके थॉट्स आप क्वाइट क्विक हो जाते हैं, क्वाइट स्मार्ट हो जाते हैं, और शार्पनेस थोड़ी सी आपकी माइंड में आ जाती है. एंड यू टेक द थिंग्स वेरी लाइटली बिकॉज यू नो, यू थिंक दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर इन दिस वर्ल्ड इफ यू डू इट विद योर हार्ट. तो एक्चुअली ऐसा मानना है कि भाषाओं से हमारे ऊपर या हमारी पर्सनैलिटी में वो निखरती हैं. आई मस्ट कोट हियर फ्रांसिस बेकन्स एसे ऑफ स्टडीज़. फ्रांसिस बेकन एक इंग्लिश एसेइस्ट थे जिनको फादर ऑफ इंग्लिश एसेज माना जाता है, और उन्होंने अपने ऑफ स्टडीज़ एक ऐसे है उसमें एक बात कही थी, एबोवेंट स्टडी इन मोर्स. इन इंग्लिश इट मीन्स स्टडी रिफ्लेक्ट्स इन आवर पर्सनैलिटी, और हिंदी में देखा जाए तो इसको कहते हैं कि जो हम पढ़ते हैं हमारा व्यक्तित्व तो हमारी पर्सनैलिटी उसी के अकॉर्डिंग बनता है, उसी के अकॉर्डिंग निखरता है. तो नो डाउट ये जो बातें हैं, लैंग्वेज जो है प्रूसियन और फ्रैंको वार में दैट टुक प्लेस in 1870 and between 1870 and 1871, and ultimately it was France that was defeated. अब सबसे बड़ा असर पड़ता है एजुकेशन को. किसी भी देश को मजबूत करना है, उसके एजुकेशन को अच्छा कर दो, वो देश मजबूत हो जाएगा. उस एजुकेशन को मॉडर्न कर दो, वो देश मॉडर्न हो जाएगा. उस एजुकेशन के अंदर एक डेप्थ ले आओ, देश में युवाओं में डेप्थ आ जाए, बिकॉज व्हाट वी लर्न वी बिकम दैट. जो हम पढ़ते हैं हम वही बनते हैं, और जब पढ़ना ही अच्छा नहीं होगा तो हम अच्छे बनेंगे कैसे? कहना अलग होता है, और बनने और हमारे ऊपर जो असर पड़ती हैं, द थिंग्स अराउंड अस, वो सबसे ज़्यादा हमारे बचपन में पड़ती हैं. तो बहुत ज़रूरी होता है कि एजुकेशन जो हमारे बचपन में हो वो कैसा हो और किस मीडियम में दिया जाए. इस बारे में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जॉन मिल्टन को आप जानते होंगे. जॉन मिल्टन एक बहुत बड़े पोएट थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे. उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल एंड सोशल ट्रैक्ट लिखा था जिसका नाम था ऑफ एजुकेशन. उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज किया था कि जो एजुकेशन का मीडियम हो ग्रीक या लैटिन जैसी लैंग्वेज में हो, क्योंकि उनके ज़माने में ग्रीक और लैटिन में ही सिखाया जाता है. जैसे हमारे यहाँ बचपन में बच्चा बड़ा नहीं हुआ उसको इंग्लिश बोलना सिखाना शुरू कर दिया. नो डाउट वी लर्न द लैंग्वेज, क्योंकि हमें जो बताएंगे आप, ये मार्कर है, ये वॉच है, इस वॉच को अगर हम बचपन में घड़ी कहते हैं तो जो छोटा बच्चा है उसको घड़ी समझेगा, और इसको अगर हम वॉच कहते हैं तो उसको वॉच याद आएगा. बट यू नो, एक ऐसी कंट्री में जहाँ पर उसे मिक्स होना है तो उसकी जो बैकबोन है उसे स्ट्रांग रखो, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे बच्चों को ना तो हिंदी ठीक होती है ना इंग्लिश ठीक होती है. तो एटलीस्ट बचपन एक ऐसा होना चाहिए, चाइल्डहुड शुड बी ऑलमोस्ट द प्योर वन, ऐसा जॉन मिल्टन का मानना था और मेरा भी मानना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस लर्न इंग्लिश आफ्टर कंप्लीटिंग आवर 5th स्टैंडर्ड. मीन्स मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत है एजुकेशन सिस्टम, बट ये भी कहूँगा कि अगर एक अच्छी समझ लेना है तो पहले अपनी मदर टंग का अच्छा समझ होना चाहिए, और ये सारे पेरेंट्स को समझना चाहिए आई थिंक. क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी इंग्लिश में ही, अगर बच्चे ने एक अम्ब्रेला है और उस अम्ब्रेले को छाता बोल दिया तो दे फील ऑलमोस्ट एम्बैरेस्ड, और वो चाहते हैं कि उसका बेटा जो हो वो अम्ब्रेला को अम्ब्रेला ही बोले, है ना. तो किंग को किंग बोले ना कि राजा बोले, या क्वीन है तो क्वीन को क्वीन बोले ना कि रानी बोले. दैट्स व्हाट दे थिंक. क्योंकि अगर उनका बेटा हिंदी बोलता है या बेटी हिंदी बोलती है दे फील इन्फीरियर
और अगर उनका बेटा या बेटी इंग्लिश बोलता है तो दे फील देमसेल्फ टू बी सुपीरियर. इट मीन्स दिस लैंग्वेज इज रिलेटेड टू सोफिस्टिकेशन, है ना, थोड़ा सा सोफिस्टिकेशन नज़र आता है. बट व्हाट मीन हियर, जब फ्रैंको प्रूसियन वार में जब फ्रांस डिफीटेड हुआ तो एक्चुअली उसकी कुछ जगह थी जहाँ पर स्पेशली इसका असर पड़ने वाला था, और वो थे एल्सेस और लॉरेन. एल्सेस एंड लॉरेन, ये वो दो जगह थी जहाँ की एजुकेशन सिस्टम पर स्पेशली असर पड़ने वाला था आफ्टर दिस डिफीट. क्योंकि जो प्रूसिया थी, प्रूसिया द नेम ऑफ द कंट्री, जो प्रूसिया थी उसने इन दोनों जगहों को अपने गिरफ्त में ले लिया, एंड दे डिसाइडेड टू लेट द चिल्ड्रन ऑफ दैट प्लेस बी टॉट not in French but in Prussian language. That was quite different one, that was quite difficult one for the young ones to feel comfortable with this language. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभी we don't understand what's the relation is there between teacher and student. एक्चुअली पढ़ने पढ़ाने के अलावा भी एक अलग सा रिलेशन होता है जो टीचर हमेशा सोचता है अपने स्टूडेंट्स के लिए टू गिव द बेस्ट एंड ऑलवेज थिंक्स व्हाट्स गोइंग टू बी बेटर फॉर हिज स्टूडेंट्स. मीन्स वो कभी ये नहीं सोचता है कि वो उसके लिए क्या अच्छा होगा, वो हमेशा सोचता है कि व्हाट शुड ही डू जिससे उसके स्टूडेंट को ज़्यादा फायदा हो. या समटाइम्स ही ट्राइज टू डू सच थिंग्स दैट ही कुड नेवर नो, बट ही इज ट्राइंग टू नो दोज थिंग्स टू लेट द नेक्स्ट जनरेशन बी लर्नड, है ना. कई बार हम सीखते इसलिए खुद के लिए नहीं बल्कि इसलिए सीखते हैं ताकि अगली जनरेशन को हम बता सकें कि एक्चुअल में उन्हें करना क्या है. ओल्ड डेज की अगर एजुकेशन सिस्टम को चलो तो आपको मालूम होगा कि जो एजुकेशन सिस्टम थी वो बड़ी स्ट्रिक्ट थी. आज जो हम लोग बहुत बंधे हुए से हैं, आई मस्ट से इट, क्योंकि आज टीचर गुस्सा भी होता है तो मार नहीं सकता है, टीचर गुस्सा भी होता है तो नाराज़गी जाहिर नहीं कर सकता, टीचर अगर थोड़ा सा परेशान भी है तो दो चार डंडे लगाकर उन परेशानी दूर नहीं कर सकता. क्योंकि ओल्ड डेज में वी हैव विटनेस्ड, है ना, हम लोगों ने बचपन में देखा है कि किस तरह से हमारे जो सर जी गुस्से में होते थे, पता नहीं किस बात का गुस्सा था, शायद घर में लड़ाई हो जाती होगी, तो उस गुस्से को ले आकर के क्लास में जाहिर कर देते थे और बिना बताए कोई कुछ भी पूछ लेते थे और बस होता क्या था कि मोटे मोटे डंडे ले आओ और पिटाई कर डालो, है ना. दीज वर द थिंग्स वी नेवर माइंडेड. कभी हमें बुरा नहीं लगा कि सर ने आज पीट क्यों दिया, मार क्यों दिया. डेफिनेटली समटाइम्स वी गेस्ड या देयर इज सम प्रॉब्लम, सर के साथ कुछ दिक्कत हो गई इस वजह से उन्होंने ऐसा कुछ कहा होगा. इन फैक्ट दीज वर द गेसेस दैट वी हैड इन आवर माइंड, बट वी ऑलवेज एंजॉयड the spirit of their teaching and they exactly loved us as their issues. मतलब कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि हम उनके स्टूडेंट हैं, हमेशा ऐसा लगता था जैसे हम उनके घर के बच्चे जैसे हैं और whatever they could do they did it. तो हम तो उसको एंजॉय करते थे. और कभी अगर ये बात मालूम हो जाए कि हमारे फेवरेट टीचर जो हैं वो चेंज हो रहे हैं तो डेफिनेटली टीचर को भी और हमें भी थोड़ी सी निराशा होती थी, नाराज़गी होती थी. बट we have to anyhow accommodate with the climate and the atmosphere and the situations that we have in our life. तो ऐसा हुआ करता था. और आज तो आप जानते हो कितने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं. ऐसा ही पुराने टाइम में एक टीचर हुआ करते थे और उस टीचर जिसने पूरी लाइफ में बड़े स्ट्रिक्ट अंदाज में अपने बच्चों को पढ़ाया हुआ है और बच्चे हमेशा एक बात को ही सोचते रहे थे और वो ये कि काश आज वो टीचर क्लास में ना आए तो बढ़िया रहेगा. ऐसा बहुत बार होता है और हमारे साथ भी होता था. तो इनके यहाँ एक टीचर हैं एम हैमेल. ओके, ही यूज्ड टू टीच इन फ्रेंच. फ्रांस की जो लैंग्वेज है उसमें वो उनको पढ़ाया करते थे. एंड सीम्स टू बी द लास्ट डे. और ये आज उनका क्लास में स्कूल में लास्ट डे है. सो ही कम्स इन हिज फेवरेट ड्रेस
because he knows he is not going to meet his little ones or the young ones once again. क्योंकि जो प्रूसिया ने इन दोनों जगहों को, एल्सेस और लॉरेन को अपने हाथों में ले लिया है, तो नेचुरल है अब एक अलग एजुकेशन सिस्टम होगी, एक अलग पढ़ाने वाले होंगे, एक अलग टीचर होंगे और अलग अंदाज में वो अपनी बातों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे. बट द स्टूडेंट्स विल मिस टू लर्न द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ देयर ओन, है ना. तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि उनकी खुद की परंपरा क्या है वो जानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. कि जैसे कि अभी अब बचपन हमें याद आता है कभी कभी, क्योंकि अभी एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, तो हमें तो बचपन में महाभारत की कहानियाँ पढ़ाई गई एक्सेट्रा, जिसमें इंडियननेस था और हम उस कल्चर को जानने की कोशिश करते थे. हालांकि बचपन में कुछ समझ नहीं होता था, बट नो डाउट जैसे जैसे वी ग्रो अप उसकी समझ थोड़ी बहुत जो डेवलप हो सके. बट व्हाट अबाउट द यंग जनरेशन, उन्हें तो ना तो बचपन में मिल रहा है ये सब पढ़ने के लिए, ना तो यंग वन होने पर उनको मिल रहा है, और शुरू से लेकर लास्ट तक उनके आसपास जो भी चीज़ें हैं उनका हमारी खुद की कल्चर या क्लाइमेट से कोई लेना देना नहीं. तो डेफिनेटली वी फाइंड अ काइंड ऑफ डाइवर्स सोसाइटी ओवर हियर, वी कैन नॉट स्टॉप इट, है ना. डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हैं और हैपन हो रही हैं, और समटाइम्स एज अ मॉरलिस्ट वी कंडेम इन एंड एज अ प्रोग्रेसिव वी एडमायर, क्योंकि मालूम है कि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं, थमता नहीं है. तो जो चीज़ें हो रही हैं दे विल बी बेटर वन, और भी अच्छी होंगी. तो अकॉर्डिंग टू टाइम वी चेंज दीज थिंग्स. तो यहाँ पर एक्चुअली मिस्टर हैमेल का यही मानना है कि अब जबकि जर्मनी को ये हैंड ओवर कर दिया जा रहा है, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट कि बच्चों को, जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें उनकी लैंग्वेज में कुछ सिखाया जा सके या उनकी कल्चर के बारे में उन्हें कुछ बताया जा सके. ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज इज गोइंग टू लॉस समवेयर. कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज खो जानी है, और वो उनको वापस नहीं मिलने वाला है. तो ये एक प्रॉब्लम ज़रूर है जिसको उन्होंने फेस किया, जिसको उन्होंने महसूस किया. और वो टीचर जो हमेशा एक स्टिक के साथ तैयार रहते थे पीटने के लिए अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि अगर कोई मिस्टेक हुई तो ही इज़ गोइंग टू बी शार्पली पनिश्ड, आज इज़ वेरी क्वाइट. द नरेटर सीम्स टू बी अ यंग बॉय, Alphonse Dautet. That's a first person narration. इसको जो नरेट किया गया है वो फर्स्ट पर्सन में नरेट किया गया है. फर्स्ट पर्सन नरेशन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन आप जानते हो ना, प्रोनाउन में आई और वी का यूज होता है, इसके ग्रुप भी होते हैं, मी, अस एक्सेट्रा, है ना. इसे हम लोग प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन कहते हैं. और ये कौन यूज करता है? स्पीकर फॉर हिमसेल्फ. स्पीकर फॉर हिमसेल्फ. जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, वो एक्चुअली ये दोनों वर्ड्स यूज करते हैं. तो जब स्पीकर हमारे लिए खुद हमारा पोएट ही हो जाए और वो अपनी ही बात, पोएट ने कुछ राइट किया और वो अपनी ही बात को बयां कर रहा हो, तो उससे हम कह रहे होते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन नरेशन है ना. अगर आपने ऑन हिज ब्लाइंडनेस को पढ़ा होगा, जॉन मिल्टन साहब की एक बहुत खूबसूरत सी सोनेट थी, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो ब्लाइंडनेस है वो पोएट की खुद की है और ही इज टॉकिंग अबाउट इट. और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अल्फोंसो डॉटेट is talking about his own last lesson that he received from his teacher, Mr. Hamel. So actually this is the experience of Mr. Alfonso Dautet, and he is the writer, he is the author of this one, this short story. Actually it's a lesson, it's a learning something for us. तो यहाँ पर अल्फोंसो डॉटेट अपनी ही एक्सपीरियंस को नरेट कर रहे हैं. तो स्पीकर खुद हैं, फर्स्ट पर्सन में नरेट किए हुए हैं, इसलिए इसको फर्स्ट पर्सन नरेशन कहा जाता है. या समटाइम्स द इमोशंस ओवरकम अस. कई बार ऐसा होता है हमारी जिंदगी में, जब हमारी भावनाएं जो होती हैं
हमारे ऊपर भारी पड़ जाती है। हमारा रीज़न या हमारा जो रैशन है, हमारी जो सोचने समझने की शक्ति जो होती है, सीम्स टू बी वीकनिंग, ऐसा लगता है जैसे कमज़ोर हो रही है और वो कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसी कुछ फीलिंग हमें आती है एंड नो डाउट हम इसे महसूस भी करते हैं। कई बार डिफीटेड हम फील करते हैं, बट एक्चुअली सही ढंग से कहा जाए तो वी कैन जस्ट एंजॉय द मोमेंट, क्योंकि एक बात हमेशा ही याद रखनी होती है, वो ये कि कोई किसी के लिए कभी नहीं रुका है और कोई कभी भी किसी के लिए नहीं रुकेगा। इसलिए दिस लाइफ इज़ लाइक अ फ्लो और हमें इस फ्लो के साथ बहते रहना होगा। एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उन्होंने अपनी एक लाइन में इस जिंदगी के बारे में कहा था आई समड अप दिस लाइफ इन 3 words। और उनके 3 words कौन थे मालूम है? इट गोज ऑन। ये जो जिंदगी है वो चलती रहती है, किसी के लिए ठहरने वाली नहीं है, किसी के लिए रुकने वाली नहीं है, बस चलती है और चलती चली जाती है। तो इट्स लाइक अ फ्लो। हम मिलते हैं, बिछड़ते हैं, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने टीचर के लिए, बट ये वक्त होता है कभी कभी हमें इजाज़त नहीं देता है। कुछ ऐसा ही है जिस टीचर को, मिस्टर हैमिल को स्पेशली आई मस्ट टॉक, अल्फोंसे जैसे स्टूडेंट्स बुरा समझते थे, स्ट्रिक्ट समझते थे, बहुत ही र्यूड समझते थे। फॉर द फर्स्ट टाइम दे कुड सी दैट ही वॉज ओवरकम बाई इमोशन, क्योंकि मिस्टर हैमिल न्यू इज नॉट गोइंग टू सी हिज लिटिल फ्रेंड्स वंस अगेन। दिस लेसन एंड्स विदाउट एंडिंग। कई बार द साइलेंस स्पीक्स एंड नॉइज इज डाउन। बोथ आर ऑलमोस्ट कंट्राडिक्टरी आइडियाज, है ना, कि साइलेंस खामोशी बोलती है और शोर जो होता है वो गूंगा होता है, शांत होता है। ऐसा ही कुछ होता है जब इमोशंस बोलते हैं तो वहां आवाज की जरूरत नहीं होती है, वहां हम आंसुओं से काम ले लेते हैं, वहां एक्सप्रेशंस हमारे हेल्प करते हैं। एंड नो डाउट अल्फोंसे दौतेत के इस नरेशन को बाय द एंड यू विल फाइंड इट्स क्वाइट टचिंग हाउ मिस्टर हैमिल फील्स हिमसेल्फ टू बी हेल्पलेस, to be unable to help his young ones for the further learning। तो ये बात यंग वंस से अगली लर्निंग के लिए हेल्प न कर पाने की जो उनकी एक कश्मकश है, उसे हम स्पेशली इस लेसन में फील करने जा रहे हैं। द लास्ट लेसन एंड दैट्स वर्क ऑफ अल्फोंसे दौतेत, a French novelist and short story writer, and his work, this last lesson, is going to teach us something that we can never be happy under the rule of any other country, whether the country is a quite rich one or very powerful, doesn't matter, क्योंकि खुशी खुद में मिलती है। और अगर हम खुश होते हैं तो खुद की दुनिया से, खुद के काम से खुश होते हैं, दूसरों के काम से तो हम सिर्फ परेशान होते हैं, हमें खुशी नहीं मिलती है, एक्चुअली परेशानी मिलती है। तो हम लोग इस लेसन को कंटिन्यू रखेंगे। आज तो मैं अल्फोंसे दौतेत के बारे में थोड़ी बहुत बातें, एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मीडियम, किस लैंग्वेज में एजुकेशन दिया जाना चाहिए, और दूसरी बात इस लेसन का जो बैकग्राउंड है वो किस वार पर बेस्ड है, कौन डिफीटेड हुआ और कौन विनर रहा, और कौन सी वो सिटीज़ थी जहाँ पर इस तरह के असर पड़ने वाले थे कि लैंग्वेज जो हो, एजुकेशन जो हो वो फ्रेंच
जो उनकी मदर टंग थी उसमें ना होकर के दूसरी टंग जो प्रूसियन लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज में दी जानी चाहिए। एंड दैट मेड स्पेशली द टीचर टू बी मोस्ट अनकंफर्टेबल। ये स्पेशली अपने टीचर्स को ही मोस्ट अनकंफर्टेबल बना रहा। सो होपफुली यू ऑल हैव बॉट this book and will enjoy this learning of the class, and Tally you will see some lessons. Definitely remember this is the part of your explanation, so I would like to go with the Hindi and English both kind of explanation. So thanks a lot for watching. Keep watching, keep learning and keep working hard. Thank you very much.